First of all, I would like to welcome you all as you have taken your valuable time to spare here. This event is actually it's a mega event. It's a dream of Orchids, calling all the 35 schools across and holding this mega event of sports. It's a sports fest and we have named it Euphoria. So it's a sport fest. Basically, all these sports events are going on. It's chess, taekwondo, football, basketball, table tennis. These are the events which we have kept. So, through my journey in playing in sports, majorly in basketball, sports teaches you a lot in life, majorly in discipline. Main things that I've learned in my life, such as leadership skills, I've learned through my sport. How do you work with the team together? So, to teach this to the youth, to the today's kids at such an early age, will definitely help them in their building up their life skills. So sports definitely helps in that, and I think that will be a message to them that do what you want. And today's time, you definitely have schools supporting you, you have your parents supporting you. So I think anyone who would like to pursue any field can definitely go for it and should go for anything they feel like, rather than just sticking themselves to a particular area. Actually, total orchids के 100 branches. So in North, we have started now. Because for the last 3 years, this orchid has come in North. So this is the first event we have started. How many participate in all? Yes, 6 years old. So it's basically from under 8. First, देख रहे होंगे कि अगर आप पेरेंट्स की बात हम करें तो स्पोर्ट्स रखे हैं, वो स्पोर्ट्स है जो सारे लोग यू कैन सी, तो पेरेंट्स आर ऑल ओके विद दैट. अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता, पेरेंट्स हमारे पास जरूर थ्रू मेल या थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस हमें ये नॉट. But there is no complaints from the parents as we have kept all the indoor events. Taekwondo हो, table tennis हो, chess हो, ये सारे indoors. So there is no problem in that. Again, my ACs are all working. स्पोर्ट्स सुपर इम्पोर्टेंट है. एवरीबडी नीड्स टू मेक श्योर कि वो अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखे. नो मैटर बच्चे हैं बड़े हैं, सो पेरेंट्स आर द वन दैट लीड विद एग्जांपल. नीड टू मेक श्योर कि बच्चों को इनकरेज करें फिटनेस की तरफ. ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखें. पेरेंट्स खुद रखेंगे तो बच्चों में वो खुद ही जाती है. दे नीड टू मेक श्योर कि एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और स्पेशली विद अ प्रोग्राम लाइक दिस, kids getting encouraged towards sports is actually pretty good. So I think that's it. That is great. Thank you. ये 3 दिन का आयोजन स्पोर्ट्स फेस्ट है जिसका नाम हमने यूफोरिया रखा है. इसमें सिलेक्शन कुछ नहीं है, दिस ओपन प्लेटफॉर्म. हमने हमारे जितने नियर बाई स्कूल्स हैं सबको इनवाइट किया है. ऑलमोस्ट 35 schools दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मेगा इवेंट. और हमारे अपने ऑर्किड्स के बच्चे भी हैं जो हमारे ऑलमोस्ट 6 branches ऑफ ऑर्किड्स आर रनिंग इन गुड़गांव. तो हमारे अपने 6 branches प्लस 35 schools. सो ऑलमोस्ट 40 schools. कौन सी क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट? ग्रेड 1 टू ग्रेड 8. इसमें हमने जो स्पोर्ट्स इसमें जो हमने स्पोर्ट्स रखे हैं, चेस है, टेबल टेनिस है, taekwondo है, and we have one dance also that we have kept as a recreational event. Right, we have basketball and we have football. और Skating as well. स्कूलों में स्ट्रेस बहुत है बच्चों बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत स्ट्रेस है. मोटिवेशन किस तरीके से किया जाता है? मेन फोकस मोटिवेशन. आजकल के बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम हो, बिकॉज दे आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन दी मोबाइल्स. उन्हें लगता है कि मोबाइल्स में टाइम स्पेंड करके दे विल बी ऑल ओके, बट दे आर फॉरगेटिंग बिहाइंड कि ये मोबाइल उनको स्ट्रेस देगा, क्योंकि इससे रेडिएशंस तो कहीं ना कहीं जा रही है ना, आपके बॉडी पे इफेक्ट तो कर ही रही है. सो दैट इज व्हाट नॉट टू प्रमोट की फिजिकल एक्टिविटीज क्या देती हैं आपको. वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस and it's not for us, for our students. We have organized for all across the schools, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे स्कूल के हो चाहे दूसरे स्कूल्स के हो. they need to learn कि स्पोर्ट्स उनको कैसे मेंटली और कैसे फिजिकली फिट करना. वो मोबाइल से थोड़ा दूर. दैट इज बच्चों पे कितना फर्क पड़ेगा जब वो इस तरीके का? बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज आई हैव सीन अभी हमारे 3 दिन के इवेंट में उनको बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड सोशलाइजिंग विद अदर्स. वो बातें कर रहे हैं, जैसे दूसरे स्कूल्स के बच्चे अगर आपस में बातें कर रहे हैं, सो दे आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स. देयर इज एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, देयर इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स. ठीक है, वो टीम स्पिरिट डेवलप हो रही है, वो स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप हो रही है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो रही है, डिसिप्लिन सीख रहे हैं. सो सोशलाइज अगर बंदा हो रहा है तो डेफिनेटली वो मोबाइल से दूर होगा. आई थिंक ऑर्किड ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक तो इट्स नॉन प्रॉफिट एज सेड, सारा स्कूल ने पूरी अरेंजमेंट की है, एंड टू गेट चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन सच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आई थिंक इट्स ग्रेटली डन, बिकॉज
अब यूथ में ना लाइक टॉकिंग इवन माय टाइम हमारे में एकेडमिक्स में अब कम फोकस है, एकेडमिक्स में भी फोकस है, ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट, बट और भी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एज मैम सेड कि ऑर्किड्स में 50-50 दिया जा रहा है। आई थिंक इट्स ग्रेट इनिशिएटिव दैट देव टेकन ऑन दैट, बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सनली स्पीकिंग इज नॉट यू लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को स्पोर्ट्स ने मेरे लीडरशिप स्किल्स को, माई सोशल स्किल्स एज मैम हैज टॉक्ड अबाउट, माई डिसिप्लिन, इट ऑल कम्स टू अ स्टूडेंट एंड टू टीच देम सिंस फ्रॉम ग्राउंड रूट्स। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अगर ऑर्किड इस तरीके से दे रहा है तो कितना बदलाव बच्चों के अंदर दिखने को It definitely is. It teaches you a lot of skills. Time management एक बहुत बड़ी स्किल है कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करोगे। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है यस, बट हाउ अदर कैटेगरीज ऑफ योर लाइक स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, आप उसको कैसे हैंडल करो, एंड ये आगे जाके फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। सो ऑर्किड ये जो अपने बच्चों को पुश करे, ग्रेट डांस। मेरे हिसाब से जो ऑर्किड ने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत शानदार है। बच्चों के लिए फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद फिटनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे हिसाब से बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ इंकरेज करना ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली हो रहे हैं, पूरे टाइम फोन्स, लैपटॉप्स इन सब में बैठे रहते हैं। तो इंस्टेड दे कम आउट, कोई स्पोर्ट खेले, टीम मैनेजमेंट हो, लीडरशिप स्किल्स हो, ये सब हो इवेंचुअली बच्चों में, वो बहुत ज़रूरी है आजकल। कितना बदलाव देखा जाता है जब बच्चे इस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ इवेंट्स में भागीदारी करते हैं? तो मेरे ख्याल से मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बिकॉज दे हैव बीन सो मच इनटू द होल फोन थिंग, पढ़ाइयाँ करते रहेंगे पूरे टाइम। मेरे हिसाब से दे शुड गेट आउट, थोड़ा खेले, बाहर निकले, समझे कि आजकल में कैसे गेम्स खेले जाते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। और मतलब आई बिलीव इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव दैट कैन बी फॉर द सिटी। इन बच्चों से आप मिले, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, स्पेशली टाइकोंडो देखा तो उनके जो उनका इंकरेजमेंट है वो बहुत अच्छा था। मैं खुद मिक्स मार्शल आर्ट्स करता हूँ, तो मैंने देखा ये लोग कितने इंकरेज हैं इस चीज़ को लेके। तो बस दिखता है कि यूथ इतना अच्छी जगह जा रहा है, तो उससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती।